which sets of the order pairs represent functions from A to B? Okay, question cut करून जरी first 1 0 one you can draw. Suppose this is the first set A, this is the set B. Okay, now for first A, this is A, this is B. 1 is related to 0, 3 is related to 3, 2 is related to 1, 4 is related to 1. Okay, 4 is also related to 1. Just a minute. 4 is related to 1. हाँ नमस्कार बोला. And 3 is related to 3. Okay. And 2 is related to 2 again. Okay. Now you have to check whether this is a function or not. Here, this element 2 of set A, element 2 of set A, related two elements of set B, 1 as well as 2. आणलेत का? बरोबर. Okay. किती झाले पैसे? Which contradict the definition of the function. Function, what is function? If every element of set A, every element of set A has unique relation with elements of set B, unique. Here 2 has two relations with 1 as well as 2. That means uniqueness is failed here. That means this is not a function. First one is not a function. Now for second we will consider 1 is related to 2. 1 is related to 2. Okay. 2 is related to -1. 3 is related to 1. And 4 is related to 3. Right? This is our set A. This is the set B. Right? That means every element of set A has unique relation with element of set B. That means this is the relation. कुठल्या टाईपचं आहे ते नंतर बघू का आत्ताच बघायचं लगेच. हॅलो, आत्ताच क्लिअर करायचं लगेच. ओके, सेट बी मध्ये अजून काय आहे बघा. -1 शिल्लक आहे, -1 0 दोन्ही शिल्लक नाही. -1 ऑलरेडी कन्सिडर केलं आहे, 1 घेतलाय, 3 घेतला आणि 0 रिलेट. This is 1-1 relation because every element of B uniquely related with A, or we can say that every element B has unique pre-image. These are called pre-images and these are called images. 2 is the pre-image, 2 is the image of 1. That means 1 is called pre-image, 2 is called image of 1. Every element of B has unique pre-image. Clear? That means this is 1-1. But this is 0. 0 is the car which is without driver. O is a car without driver. मग काय म्हणावे ला या प्रकारच्या फंक्शनला काय म्हटलं होतं आपण मागच्या वेळेस? into function.
कार विदाउट ड्रायव्हर, आणि जर का सगळ्या कार्सला ड्रायव्हर असेल तर त्याला म्हणतो आपण ऑन टू. ओके, दिस इज अबाउट option B, that is it is a function, no doubt it is 1 1 as well as into. Okay, third बघूयात आपण, हे मी इरेज करतो इथनं. For C, 1 is related to 3, 4 is related to 1, 2 is related to 2. Okay, this is A. And this is B. A मध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स अवेलेबल होते? 1 2 3 4. 1 2 4 झाला, 3 नाहीये. मग काय म्हणा ह्याला? इज इट फंक्शन? इज इट फंक्शन? अरे बोला. अरे फंक्शन आहे का हे? कशावरून? काय डेफिनेशन फंक्शनची? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, every element of A has unique relation with element of B. Every, here 3 does not have any relation with element B. That means it is not a function. Clear? Not a function. 1 1 on the function. क्लियर? डेफिनेशन बॅकग्राऊंडला कायम कंटिन्यूस ठेवा. ओके, अगर हे रिलेशन आहे, हे रिलेशन आहे असं आपण म्हणतोय, फंक्शन नाही आहे पण रिलेशन आहे. मग रिलेशन 1 1 आहे कारण एकच रिलेशन तयार होत आहे, आणि रिलेशन जे आहे ते इनटू आहे. जसं फंक्शन इनटू 1 1 ऑन टू असतं तसं रिलेशन पण असतं. बरोबर? म्हणजे हे रिलेशन, इट इज रिलेशन. Which type of relation? 1 1 as well as into. Okay, इथे -1 आणि 3, सॉरी -1 आणि 0 हे या दोन कार्ड्स विदाउट ड्रायव्हरचे आहेत, म्हणून आपण म्हणणार इंटू फंक्शन, सॉरी इंटू रिलेशन. अँड इट इज 1 1 बिकॉज एव्हरी एलिमेंट हॅज ओनली वन रिलेशन. 3चं 1 शीच आहे, 1चं 4 शीच आहे, 2चं 2 शीच आहे. इथे या 1चं दोघांशी रिलेशन नाही आहे. Clear? It is a relation but not a function. And which type of relation? 1 1 as well as into. Clear? आता D बघू आपण जरासा. D 1 1 is related to 1, 2 is related to 1, 3 is also related to 1, and 4 is also related to 1. These are the elements of A and B. बघा बरं, डेफिनेशन अप्लाय करून, डेफिनेशन अप्लाय करा. फंक्शन आहे, इज अ फंक्शन. ओके, विच टाइप ऑफ? 1 1 1 आणि इंटू पण आहे, कारण याच्यामध्ये बी चे बाकीचे एलिमेंट्सचा पुढे उल्लेख नाही आहे. -1 0 2 आणि 3 ह्यांचं रिलेशन नाही ए मध्ये कोणाशी. म्हणजे हे कार्स आहेत पण ड्रायव्हर नाही आहेत म्हटल्यानंतर इंटू झाले. क्लिअर? अरे समजलंय का? अरे येस और नो? अरे समजलं आहे का? पुढचं बघू आपण क्वेश्चन. आपला कुठला पेज नंबर 14. Check if the relation given by the equation represent y as a function x. Okay, देखते हैं.
for a. What is the equation given? 2x plus 3y is equal to 12. That means 3y is equal to 12 minus 2x. That is y is equal to 4 minus 2 by 3x. Clear? For every value of 1x, every value of x gives one value of y. मान लीजिए ये x सेट है, y सेट है, x की वैल्यू हम 0 पुट करें हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4. 0 इज रिलेटेड टू 4, राइट. x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y कितना आएगा? 4 minus 2 by 3. 4 to the 12, 12 minus 2, 10, 10 by 3. अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये होगा 4 plus 2 by 3. 4 to the 12 plus 2, that is 14 by 3. That means every value of x is related to only one value of y. Clear? That means it is 1 1. राइट. अजून बोला y मध्ये सगळे रिअल नंबर्स येतील. जसं जसं आपण x मध्ये सगळे रिअल नंबर घेऊ त्या प्रत्येक नंबरचं y बरोबर कुठे ना कुठेतरी रिलेशन होणार, राइट. दॅट मीन्स इट इज दिस इज ऑन टू. कुठलीही गाडी विदाउट ड्रायव्हर राहणार नाही. इथल्या प्रत्येक गाडीला एक एक ड्रायव्हर मिळणार. क्लिअर? जस कुठली एक इमॅजिनरी व्हॅल्यू घ्या x ची, त्याला एक y ची व्हॅल्यू एसोसिएट होणारच आहे. क्लियर? ओके, दिस इज अबाउट a. अब हम b को देखते हैं. x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. x plus y square is equal to 9. Therefore, y square is equal to 9 minus x, right? Therefore, y is equal to under root of 9 minus x. Clear? Always rearrange this given equation as y is equal to fx. Okay? त्यामुळे आपल्याला या x च्या व्हॅल्यू शोधता येतील. बरोबर. आता मला सांगा x च्या प्रत्येक व्हॅल्यूला y व्हॅल्यू डेव्हलप होईल का? x च्या प्रत्येक व्हॅल्यूला y व्हॅल्यू डेव्हलप होईल का? बघा, सपोज x ची व्हॅल्यू फॉर x इज इक्वल टू 10 घेतला मी, तर हा होईल अंडर रूट ऑफ -1. Is it possible? Is under root of -1 is the real number? म्हणजे इथे काही गोष्टी x आपण कन्सिडर करू शकत नाही. काही नंबर्स x साठी आपण व्हॅलिड करू शकत नाही. क्लियर? मग आता हे फंक्शन होण्यासाठी काय करावं लागेल? ओके, हे फंक्शन नाहीये हे मान्य केलं आपण, कारण x च्या काही व्हॅल्यूज आपल्याला कन्सिडर करता येणार नाही. मग फंक्शन होण्यासाठी x ला आपल्याला कुठल्या व्हॅल्यूज कन्सिडर नाही करता येणार, किंवा कुठल्या व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या तर हे फंक्शन कन्वर्ट होऊ शकेल. तर फंक्शन होण्यासाठी हा अंडर रूटचा जो आतला पार्ट आहे हा ग्रेटर दॅन 0 असावा लागतो. अंडर रूट ऑफ पॉझिटिव्ह नंबर इज ऑलवेज पॉसिबल. अंडर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? दॅट मीन्स 9 minus x must be greater than 0. If is it equal to 0, then under root of 0 is 0. Still we can define y is equal to 0. If x is equal to 9, y is 0, which is possible. But when 9 minus x is greater than 0, then we can consider this as a function. That means if 9 is greater than x, that means our function is defined when x is greater than 9. Below this value, we cannot greater than or equal to. Below this 9, we cannot define this as a function. Right? Clear?
as it is not a function, as it is, कारण x मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण नाही कव्हर करू शकत. पण जर काही फंक्शन हवं असेल तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, 9 पेक्षा मोठी असायला पाहिजे, 9 किंवा 9 पेक्षा मोठी असायला पाहिजे. That means for this function the domain means value of x must be greater than or equal to 9. Clear? Domain means the possible values of x and range means possible values of y. तो आपण नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये रेंजचा पार्ट बघू, पण आता क्वेश्चन आला म्हणून लगेच मी तुम्हाला तो क्लिअर केला. Here this is a function only when this condition is true. Right? Below this value, below this 9, we cannot say this is a function because we know that square is never negative. If we consider x as 8, for example, x is 10 or x is 11, 9 minus 11, that is minus 2, square is never negative. Okay, which contradict our regular sentence. That means ये इक्वेशन फंक्शन होने के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ही होने स्मॉलर ही होनी पड़ेगी. ये फंक्शन कब काम नहीं करेगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगी, 9 से बड़ी होगी तो ये काम नहीं करेगी. इसको 9 से कम ही रहना पड़ेगा तभी यह फंक्शन हो सकता है, डिफाइन हो सकता है. क्लियर? क्लियर? जब अंडर रूट का साइन होता है तब अंडर रूट का अंदर का जो पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, वैलिड है. ओके, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल फॉर्म. इट कैन बी अवेलेबल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. क्लियर? कॉम्प्लेक्स मध्ये झालं असेल ना तुमचं हे. अरे कॉम्प्लेक्स मध्ये आयोटा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आई स्क्वायर हो गया, यानी प्लस और माइनस आई हो गया यार, बट इट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नॉट इन रियल फॉर्म. राइट? चलो आगे चलते. और कौन सा इक्वेशन है देखते हैं. 1 मिनट. काय है x स्क्वेअर मायनस वाय इक्वल टू 25. इथे मेरा स्क्रॉल करावं लागेल मला. x स्क्वेअर मायनस वाय इज इक्वल टू 25. दॅट मीन्स x स्क्वेअर मायनस 25 इज इक्वल टू y. बोलिए ये फंक्शन है या नहीं है, देखते हैं. अगर x 0 लिया तो y माइनस 25 होगा. अगर x 1 लिया तो y माइनस 24 होगा. अगर x माइनस 1 लिया ये क्या होगा, माइनस 24 ही होगा. अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू निकल कर आएगी तो -21. राइट? अगर x -2 होगा तब भी वैल्यू -20. ओके, दैट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y. दैट मीन्स इट इज अ रिलेशन. Okay, whether it is 0, positive or negative. If we consider x 0, then also there is one y. If x is negative, also there is one y. For positive x, again there is one y. That means it is a relation. Okay, इसे मिली दो. Which type of relation? नहीं है यहाँ इधर. नॉट 1 1 नॉट 1 1. हाँ, ऑन टू है क्योंकि सब वैल्यूज y के आ जाता है. ऑन टू. ओके, इतना काफी है अभी हमको. ओके, व्हाट इज डोमेन?
डोमेन ऑफ दिस ऑल रियल नंबर्स डोमेन, वो भी लिख लेता हूं मैं यहाँ, आगे जाके हमको वो भी सॉल्व करना है। ऑल रियल नंबर्स, राइट। व्हाट इज कोडोमेन? all values of y, it is again real number, all real numbers, okay. What is range? Again range is also all real numbers. Clear? No, 100% perfect. Clear? We can use any value of x, and for every x we will get one y, right? That means entire real number on number line on x-axis must be a domain. All entire y-axis is nothing but our domain, and range is also entire y-axis, that is real number. Clear? हाँ बोला। किसके किसके? हाँ हाँ बोला बोला। ओके, ये जो पार्ट है रेंज का वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट रेंज का। अभी बता दूं, अभी बता देता। ओके चलो अभी देता हूँ उसका। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू वाई, राइट। तो हमको y की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो हम ये करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 25, दैट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 25। अंडर रूट पार्ट क्या होना चाहिए? अंडर रूट पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी वो वैलिड हो जाता है। यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 25 होनी चाहिए। तो y मस्ट बी, y की वैल्यू किस लिमिट में आएंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 होगा, -25, तो -25 से होके ये इंफिनिटी तक जाएगा। और व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y? रेंज। क्लियर? तो जैसे हम डोमेन x की वैल्यू फाइंड करते हैं डोमेन से, वैसे ही हम y से रेंज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x को अलग रखना पड़ेगा और ऑल पार्ट ऑफ y एंड द कॉन्स्टेंट, ये जो पार्ट है वो अदर साइड को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, और x इज इक्वल टू समथिंग इन y, और अब हम y की वैल्यू ढूंढेंगे। क्लियर? जैसे डोमेन करने के लिए क्या किया था हमने, y इज इक्वल टू fx लिया था और x पर कंडीशन लगा दी, वैसे ही x इज इक्वल टू fy करके हम y की वैल्यू जो ढूंढेंगे तो हमको रेंज मिल जाएगी, राइट। यानी कि ये फंक्शन बिलो -25 पॉसिबल हो नहीं सकता, y की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। क्लियर? यस और नो? तो डोमेन क्या होगा? ओके, ये रेंज होगी, डोमेन का कंडीशन होगी। हाँ बोला। हाँ डोमेन सारी कंडीशन, रेंज सारी डालो। डोमेन में जहाँ पार्ट x स्क्वायर माइनस 25, you can put any value of x, it may be plus, minus, 0, you will get one value of y. That means real number, all real numbers. बट ये एक्चुअली पैराबोला है, एक्चुअली ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 25, ये पैराबोला है। ये कहाँ से जाएगा? ये -25 से
ये -25 आएगा, इसके ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा शिफ्ट, इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो गया है, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है, ये प्लस है तो ये -25 अपोजिट साइड। ओके, ये मेरे ख्याल से आपको कहाँ सिखाया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पैराबोला, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोलास, अरे कुछ तो सिखाया होगा ना, भूल गए सब, स्टार्टिंग के है मेरे ख्याल से, जब आपका ये स्टार्ट हो गया कोर्स हो गया तभी फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने सिखाया होगा, फर्स्ट या सेकंड मंथ में, बेसिक मैथमेटिक्स के बाद जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये सब शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला, ये सब हम यूज करते हैं। तो यहाँ फंक्शन के लिए x की सब वैल्यूज हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट का अगर हम डालेंगे x एक्सिस पर तो वो हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस का सिर्फ यही एरिया हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ये एरिया खाली रहेगा y का, तो ये रेंज में नहीं आएगा। रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ -25 onwards, that is towards positive side. Okay, below -25 ये जो एक्सिस का पार्ट है y एक्सिस का, वो ये ग्राफ के अंडर नहीं आ रहा है। इसका प्रोजेक्शन अगर हम डालेंगे किसी भी पॉइंट का, ग्राफ का किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से प्रोजेक्शन डालेंगे तो वो अबाउट -25 मैच होगा, लेकिन बिलो -25 वी कैनॉट कंसिडर एनी पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ओके, that means range is restricted from -25 including -25 to infinity, but for domain, that means the possible values of x, you can consider any value, positive, negative, 0 as well as. Clear? Question 15 14 पे होगा ये 2y plus 10, 2y plus 10 ये तो स्ट्रेट लाइन है, 2y plus 10 is equal to 0, that is y is equal to -5. It is a straight line, it is a constant function, it is a constant function with domain all real numbers and range is only -5. ये ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस, ये अगर y x एक्सिस y एक्सिस तो ये सॉरी -5 ना, यहाँ आएगा वो, ये ग्राफ ऐसा आएगा। यू कैन consider any x values, okay, it will focus on this graph, but the -5 is the value of y, possible value of y, that means range is only -5, whereas domain is all real numbers. ग्राफ का कोई भी पॉइंट का आप प्रोजेक्शन x एक्सिस पर लोगे तो वो नंबर बताएगा, ओके, लेकिन y एक्सिस का खाली -5 नंबर ही आएगा उस पे ग्राफ पे, तो रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली -5, ओनली वन नंबर, whereas domain is entire range. It is a function, it is a one function, but it is not onto, it is into function, because y का only -5 कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? यस और नो? हेलो? ये भी क्या होगा बोलिए, ये क्या होगा, 3x minus 6 is equal to 21, that is 3x is equal to 27, x is equal to 9, x is equal to 9, x is equal to 9 is the line, x is equal to 9 is a line, मानो ये लाइन है, x is equal to 9, is it a function? ये दिया है y is equal to fx, that is क्या बोला है 3x, ओके, ये 9 इधर आएगा -27 होगा, ओके, y is equal to 3x minus 27,
तो देखो, अगर हम x के कोई भी वैल्यू इधर डाल देते हैं, x की मानो 0 डाल दी तो माइनस वाई इक्वल माइनस 27 आएगा। x की वैल्यू 1 डाली तो 1 माइनस 27 दैट इज माइनस 24 आएगा। इफ x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो ये माइनस 30 होगा। यानी फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y। okay, there is no restriction on x value. You can consider any value as x. That means domain of this function is minus infinity to plus infinity, that is all real numbers, and for every x there is one y value possible. That means range is also all possible numbers, real numbers, that is R. There is no restriction on x, there is no restriction on y. Okay, so it is a function, no doubt. Which type of function? 1 1, right? ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू होगा या इन? ऑन टू. ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर nothing but the range. Okay, that means entire domain is nothing but our range. That means it is on function. Clear? आपको खाली ये क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करते समय और डोमेन फाइंड करते समय बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके 2 ही रूट्स मिलते हैं मैक्सिमम। तो वो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये एंटायर रेंज हो सकती है या रेंज पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। डोमेन एंटायर हो सकता है या उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, ये हमको पता चलेगा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेपरेट जो मॉड्यूल है वो आपका लिया गया था स्टार्टिंग में। और एक देखते हैं, अब उन्होंने क्या दिया है, हमको एक फंक्शन दिया है और फंक्शन जो है वो m के फॉर्म में है और m के डिफरेंट वैल्यूज दिए है। तो हमको अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ m यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। वही भी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ m यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ -3 निकालते हैं, यहाँ m की वैल्यू -3 लेंगे। व्हाट इज fm? fm इज नथिंग बट m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। अगर m की वैल्यू -3 है तो ये 9 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 9। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये देखते हैं इसका d का, ये होगा b, d का देखते हैं। f ऑफ x प्लस 1, नाउ इंस्टेड ऑफ m यू हैव टू यूज x प्लस 1, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट m, m मीन्स x प्लस 1 प्लस 1, that is x square plus 2x plus 1 minus 3x minus 3 plus 1, that is x square minus x minus 1. This is f of x plus 1. Clear? ये क्या है? कैसे निकलेंगे? ओके, ये ऐसे करते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ही ये सॉल्व करते, और बाद में उसका मैं मीनिंग भी बता देता हूँ। चलो
वो भी सॉल्व करते हैं. एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एच वेयर एच इज नॉट इक्वल टू 0. ये हटा देता हूँ मैं इधर से. चलो पहले हम एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं. यानी 2 प्लस एच एम की जगह लेगा. 2 प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 1 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3h प्लस 1. This is h square. 4h minus 3h, that is 1h. 4 plus 5 1 5 5 minus 1 5 minus 6, that is minus 1. This is first part. Now f of 2, ये हम orally करेंगे. f of 2 4 minus 6 that is minus 2 plus 1, that is 1. और h, that is डिवाइडेड बाय h लिखा है खाली, f ऑफ h नहीं लिखा है. तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए. ये होगा h स्क्वायर प्लस h माइनस 1, ये माइनस 1 सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है साइन अपॉन h. तो ये 1 1 कैंसिल होगा. इसमें से 1h हट जाएगा, कॉमन लेके खाली नीचे से कट हो जाएगा, तो खाली h प्लस 1 आएगा. क्लियर. ये कंडीशन क्यों दे रखे, अगर h 0 हो जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा नॉट डिफाइंड में, इसलिए वो कंडीशन उन्होंने दे रखी है. h इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. हर एक सेगमेंट को हमने अलग से किया, हर एक सेगमेंट को, और वो फॉर्मेट में डाल दिया उसमें. क्लियर. अगर इसके आगे इसके पहले हम लिमिट लगा लेते वर्ड और h टेंस टू 0 कर देते, तो ये मीनिंग बदल जाता. ये होता f डैश x डेरिवेटिव. ओके, f डैश x या m डैश जाता. अगर हम इसको पहले लिमिट h टेंस टू 0 कर देते तो ये कन्वर्ट हो जाता डेरिवेटिव में. इनडायरेक्टली अगर इधर लिमिट वर्ड लिखा होता तो हम इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता. क्लियर. तो हर एक वर्ड का सब खुद का मीनिंग होता है. यहाँ लिमिट का मीनिंग अकॉर्डिंग टू दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन fm. ओके, लेकिन ये नहीं दिया है तो हमको इसकी अभी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यही फोकस करेंगे. लेकिन जेई वाला आई भी पूछेगा, उसमें लिमिट को डाल देगा. तो अगर आपको डेफिनेशन मालूम है डेरिवेटिव की, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको मालूम है, तो ये आप अपने आप ढूंढ पाओगे, उसका मीनिंग जान पाओगे. ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है. फाइंड x. okay, find x if g of x is equal to 0. दिया हुआ फंक्शन अगर 0 है तो हमको x वैल्यू निकालनी है. ओके, b लेंगे. g of x is equal to 18 minus 2x square divided by 7. अगर g of x is equal to 0 हो तो इसका मीनिंग होगा 18 minus 2x raised to 2x square upon 7 is equal to 0 है. यानी ये 7 इधर जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर इधर जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3. तो x के दो वैल्यूज आएंगे.
ओके क्लियर। और एक देखते हैं, ये डी वाला देखते हैं, डी वाला इधर लिखता हूं मैं। g of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. g of x is equal to 0 implies x cube minus 2x square minus 5x plus 6 is equal to 0. क्या करें इसका, बोलिए। x की पॉसिबल वैल्यूज हमको निकालनी है। ओके वन थिंग मैं इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए, focus on the coefficients of each term. This is 1, minus 2, minus 5, 6. What is the addition of these coefficients? Sum of all coefficients. Sum of all coefficients. क्या है? खाली कोएफिशिएंट्स है, ये भी कोएफिशिएंट है, x रेस टू 0 है, ये एक्चुअली 6x स्क्वायर है, x रेस टू 0 है, लेकिन x रेस टू 0 मीन्स 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने खाली 6 लिखा है कांस्टेंट।